Good morning, everybody. I am Anup Chaudhary, presenting physics class for class 12th. Till now, we have made video lectures for electric charge and Coulomb's law, along with numerical and conceptual problems. How to see my videos? On the thumbnail of the video which you see on the YouTube before going inside it, before running it, there it is written that is my lecture 1, lecture 2, lecture 3, lecture 4, lecture 5 along with topic. You have to start from the lecture 1. Now, second thing, for a 12th class student, really it is difficult to go through 70-minute lecture, because he has to pause. So what to do? Simply go through at least 30 to 35 minutes of lecture till the numerical problem is completed or any topic is completed after 30 minutes. And pause there. Do not worry about how many lectures I am uploading in a week. What you can do, follow that thing. Because it is very difficult that if I am going to accept to limit the video for half an hour, a number of content which come into mind in the flow or at the runtime, we are going to lose. So do not do that thing, but limit your time to see the video for half hour, 35 or 40 minutes. Okay, today I am going to start electric field. Before it, please like, subscribe and share my video, because as the subscription increases, as the like increase, or you share my video, it provides a moral boosting to me to do more better. Okay, now electric field. ELECTRICAL, electric field. Electric field of a charge. Electric field of a charge is space around the charge. Is the space around the charge where its electrical effect is perceived. What is called electrical effect? That is electrical force. Simply is perceived. Now, one more topic, mechanical force. A force which produces acceleration on a body upon which it is working. A force which produces acceleration in a body upon which it is working is called mechanical force. मैकेनिकल फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कैसे एक्सर्ट करती है वो हमें दिखाई देता है, उसको हम फील करते हैं. ऐसा कोई भी फोर्स जो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है उसको हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे चार्ज पार्टिकल पर और उसको एक्सेलरेट कर देता है, मींस इट इज ए मैकेनिकल फोर्स. हाउ इट डज? We are not able to see anything. So one more concept is coming up here, that is electrical lines of force.
These are imaginary lines. These are imaginary lines associated with the charged particle, which when these are imaginary lines associated with the charged particle, which when interact the electric lines of force of other charge, the electrostatic force starts acting between them. Starts acting between them. Clear? Now, the properties of electric lines of force. Properties of electric lines of force. Number 1, it starts or originates from isolated positive charge particle and terminates at infinity in radial direction. In radial direction means in such a way. What is the meaning of radial? Radial means perpendicular to the surface of the charged particle. Now, property number 2, it originates at infinity and terminates at the surface of, it originate from infinity and terminate at the surface of negatively charged particle in linearly inward direction. In radially inward direction. ये चार्ज पार्टिकल भी आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल है, मींस इसके ऊपर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. नंबर 3, it starts from positive charge particle and terminates at the surface of negative charge particle in radial direction. In this way, this is 90 degree, radial direction का मीनिंग यही है. सरफेस पे 90 डिग्री होना चाहिए, अदरवाइज हमारा डायग्राम गलत होगा. 4th, it is continuous between its origin and terminal points. It is continuous between its origin and termination point. Number 5, it is discontinuous at the surface of the charged particle. At the surface of the charged particle. 6, at the surface of charged particle. Number 6, it cannot. Number 6, it cannot enter or cross or penetrate the surface of a metal. Surface of the metal. 7, the electric field line inside an isolated metal is always 0. आइसोलेटेड मेटल का मीनिंग होता है जो किसी सर्किट का हिस्सा ना हो, पार्ट ना हो. Number 8, in a current carrying metallic conductor, electric lines of force are always present.
are always present. Ninth, the number of electric field lines per unit area at any point is called electric field intensity at that point, or electric field line density at any point is called electric field intensity at that point. 10. The direction of electric field at any point on electric lines of force is along the tangent at that point. Means if this is electric lines of force, means positive test charge इस direction में आगे बढ़ता है, and we have to find out direction of electric field at this point P. Then we have to draw tangent in this direction. Suppose अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से जा रही होती तो हम ये पॉइंट Q होता है यहाँ पे देखते तो टेंजेंट इधर ड्रॉ करते, जिधर जा रही होती है उस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं. 11th, two electric field lines can never intersect each other. No two electric field lines intersect each other, whatever the case may be. If they intersect, then at intersecting point, suppose ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, this is the intersecting point. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, which is not possible. स्टेटमेंट में इसे लिख सकते हैं, no two electric field lines ever intersect each other. If so, there will be two directions of electric field at the intersection point, which is not possible as electric lines of force represent the resultant force direction at that point. क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स एक ही डायरेक्शन में होता है तो ये भी संभव नहीं है कि कहीं भी ये इंटरसेक्ट करे. 12th, it has a tendency to shrink along its length. That's why unlike charges attract each other. हमने यहां पे ड्रॉ किया था पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये श्रिंक करने की टेंडेंसी तभी रख सकती है जब ये दोनों पास पास आ जाए, और पास पास तभी आ सकते हैं जब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा. 13th, electric lines of force exert lateral pressure on each other. That's why like charges repel each other. This is positive charge, this is positive charge. यहां पे इस पॉइंट पे हम देखें तो ये वाली लाइन इस पे इधर, ये इस पर फोर्स इधर लगा रही है, प्रेशर इधर एक्सर्ट कर रही है, और ये इस पे प्रेशर इधर एक्सर्ट कर रही है. इस पे इधर प्रेशर, इस पे इधर प्रेशर, तो एक दूसरे से दूर हट जाएंगे. इसलिए जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इज दिस क्लियर? नाउ electric field intensity. Electric field intensity at any point in the electric field of a given charge is defined as the electrical force experienced by unit positive charge at that point. Or electric field intensity at any point in the electric field region of a given charge is the electrical force experienced by unit positive test charge at that point. सपोज करें यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव टू वर्क आउट. हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 रखा, इस पे हमने देखा F फोर्स इधर वर्क कर रहा है. Q0 चार्ज पे F फोर्स तो यूनिट चार्ज पे F by Q0. Therefore E is equal to F by Q0.
इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भाई वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है ना पर यूनिट चार्ज। तो इसको वी कैन राइट वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। इफ हम बात करें इसकी यूनिट की, देन इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम एंड डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, चार्ज करंट इंटू टाइम, करंट मीन्स एम्पियर, टाइम मीन्स टी। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, स्क्वायर ब्रैकेट में प्लेस कर दो। क्लियर? नाउ टेस्ट चार्ज। First thing we have to remember that there are two types of charges and reference charge is the positive charge. हम positive charge को reference charge कहते हैं, reference charge की तरह ट्रीट करते हैं। हम कोई भी बात कहते हैं तो positive charge के रिस्पेक्ट में कहते हैं। अगर हम कुछ मेंशन ना करें, अगर हम कहीं पे मेंशन करें स्पेशली दैट इट इज पॉजिटिव चार्ज और इट इज नेगेटिव चार्ज, तो जैसा मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। कुछ भी मेंशन ना करें तो हम पॉजिटिव चार्ज इनिशियली लेके चलेंगे। हो सकता है बाद में जैसे आप रेशनल नंबर की बात करते हो, स्क्वायर रूट 2 को पहले रेशनल लेके चलते हो, बाद में कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो आप उसको रेशनल कह देते हो, उसको आप इरेशनल कह देते हो। पहले क्या करते हो, उसको रेशनल लेके चलते हो, फिर वो रेशनल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो आप उसको इरेशनल एज्यूम करते हो, मानते हो। ये प्रूव करने का तरीका है ना। तो हम पहले यहाँ पे रेफरेंस चार्ज पॉजिटिव चार्ज को लेके चलेंगे। टेस्ट चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज, a positive charge of very least magnitude is called test charge, as it produces disturbance in the electric field pattern established by some other charge or some other charges very in less magnitude. हम नहीं चाहते कि किसी भी दूसरे चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है किसी दूसरे चार्ज की वजह से चेंज हो, इसलिए टेस्ट चार्ज को हम बहुत स्मॉलर मैग्नीट्यूड का लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। Point charge. Let Q be a point charge and at small r separation from it there is a point P where electric field we have to calculate out. Put here a test charge Q naught and suppose capital F force is acting on this test charge due to capital Q charge. Then capital F is equal to K कैपिटल Q स्मॉल q नॉट बाई r स्क्वायर और E इक्वल टू F बाई Q नॉट। इसको Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो KQ बाई r स्क्वायर आ जाएगा और E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। In vector form, vector E equal to 4 pi epsilon naught Q by R square, R cap equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R cube into vector R। भाई आर कैप को हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे ना, आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर बाई आर। ये डिनोमिनेटर में आर आया वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा।
Now, superposition principle. Superposition principle. This principle states that the electric field at a point due to a number of charges is equal to the vector sum of the electric field produced by individual charges. Means हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं. मेरे पास ये Q1 चार्ज है, यहाँ पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये Q2 चार्ज है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है. ऐसे करते हुए यहाँ पे देयर आर टोटल n चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये En प्रोड्यूस कर रहा है. देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर En. In the same way, we can write superposition principle for electrical force. Means for force we can write as superposition principle for electrical forces states that the net force acting on a charged particle due to a number of charges is equal to the vector sum of electrical forces exerted by individual charges. Same thing is there ना. बस यहाँ पे हमने क्या कि यहाँ पे एक चार्ज क्या Q, इस पे देखा इन सब की वजह से फोर्स कितना लगेगा. हमने इसको कहा F1, this is F2 and this is Fn. Then net force F is equal to F1, F2, so on Fn. Net electrical force. The question we have solved upon it, जब हम लोगों ने ट्रायंगल पे, स्क्वायर पे, रेक्टेंगल पे फोर्स निकाले थे तो वहां वेक्टर सम ही किया था. Now, some questions regarding to electric field. Number 1. Find electric field at a point at 10 centimeter from plus 2 microcoulomb charge. Q is what? Plus 2 microcoulomb plus 2 into 10 power minus 6 coulomb, and R is equal to 10 centimeter, 10 into 10 power minus 2 is equal to 10 power minus 1 meter. यहाँ पे अगर हम टेस्ट चार्ज रखें इस पॉइंट P पे, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा. मींस इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में मूव करने की होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेसिकली जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वही होती है. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉजिटिवली चार्ज टेस्ट चार्ज पार्टिकल. E इक्वल टू हमें पता है KQ by R square 9 into 10 power 9 into Q2 into 10 power minus 6 upon 10 power minus 2 whole square. 9 to the 18 into 10 power 9 minus 6 3
प्लस 4 1.8 into 10 power 8 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। This is Q charge, this is Q charge. Both are light charges. Sign is not given, we have to take it a positive charge particle. हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहां से यहां तक इन सब की डिस्टेंस r है। क्या किया था कूलॉम्स लॉ में जब हमने किया था तो यहाँ पे एक चार्ज ऑर्डर दिया था, उस पर फोर्स देख लिया था। अब यहाँ पे चार्ज नहीं रखना है, बाकी निकालना है। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगी। ये एंगल कितना होगा भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का होगा, तो ये भी 60 डिग्री का होगा। वेक्टर सम करेंगे तो उनका रिजल्टेंट इनके बीच से कहीं जाएगा। अगर यहाँ पे हम E1 निकालें या E2 निकालें तो दोनों ही आपस में बराबर आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज सेम है, इक्वल टू KQ/R²। नेट फील्ड इज E, इट इज मेकिंग एंगल अल्फा with E1. Then net field E is equal to under root E1 square E2 square twice E1 E2 cos 60 degree is equal to KQ/R whole square प्लस 2। भाई दोनों की वैल्यू सेम होगी, KQ/R² यहाँ पे भी आ जाएगा, cos 60 1/2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। वर्कआउट करोगे तो KQ/R² √3 आ जाएगा। नाउ 10 अल्फा। भाई एंगल किसके साथ निकालना है? E1 के साथ ना, तो E1 को यहाँ पे नीचे रखेंगे, यहाँ E2 sin 60 प्लस E2 cos 60। इसको वर्कआउट करेंगे E1 E2 की वैल्यू रख करके, तो भाई ये जो है हमारे पास 1/√3 आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये हमें पता है 10-30 डिग्री की वैल्यू होती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। There is a large number of variety of questions regarding to Coulomb's law and electric field, because यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज रखते हैं, तो ये फोर्स ही के बराबर बना। तो हम बहुत कुछ वहां पे करा चुके हैं, बहुत कुछ यहाँ पे भी कराएंगे, और बाकी आगे आप कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इसके किसी कंसेप्ट को वहां पे या वहां के किसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते। जैसे इन 2 क्वेश्चन में हमने देखा, सिंपली अप्लाई किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फिर से सपोज कर लें ये तीनों साइड्स आपस में बराबर है, यहाँ Q चार्ज है, यहाँ Q चार्ज है, लेकिन ये माइनस Q चार्ज है। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसकी ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगी। क्यों दूर की तरफ होगी? क्योंकि अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स दूर की तरफ काम करेगा। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल होगा, ई इधर काम करेगा। ये अब क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये 120 हो जाएगा ना, ठीक। रिजल्टेंट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कहीं होगी। अब की हमने E2 के साथ इसको अल्फा एंगल बना दिया। यहाँ पे बिल्कुल वैसे जैसे पिछला क्वेश्चन कैलकुलेट आउट किया था, E1 E2 दोनों की वैल्यू KQ/R² आ जाएगी। भाई एक बार समझ लो कि जब हम सॉल्व कर रहे हैं वेक्टर की प्रॉब्लम, लेकिन हम IJK यहाँ पे लेके नहीं चल रहा है, ठीक। देन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्शन भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर की तरफ डायरेक्शन लिया ना, नेगेटिव चार्ज से पास की तरफ, तो जो पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन लिया, तो जो पॉजिटिव का मतलब है, जो नेगेटिव का मतलब है, हम पहले ही यहाँ डायग्राम कंप्लीट करने में इंक्लूड कर चुके हैं। इसलिए क्वेश्चन को वर्कआउट करते समय यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं रखना है, केवल मैग्नीट्यूड को टैकल करना है, ठीक।
इसको अगर हम वर्कआउट करें रिजल्टेंट के लिए तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 कॉस 120 आ जाएगा। ये आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2। भाई दोनों का बात बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन cos 120 माइनस 1/2 होता है। ये मेरे पास जो बचेगा वो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी। इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। नाउ कमिंग टू डायरेक्शन पार्ट, tan अल्फा। भाई सब अल्फा एंगल किसके साथ निकालना है? E2 के साथ निकालना। जिसके साथ निकालते हैं उसे डिनोमिनेटर में अकेला रखते हैं। बचा कौन? E1। इसका साइन आता है 120 डिग्री, इसके साथ कॉस आता है 120 डिग्री। सबकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे तो भाई ये √3 आ जाएगा, या अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। Now coming to fourth question. यहां पे देख लें, अगर मेरे पास ये कोई स्क्वायर है, यहां पे क्यू चार्ज, यहां पे क्यू चार्ज, यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, और मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैकेंट वर्टेक्स है, साइड लेंथ को आप स्मॉल r सपोज कर लीजिए, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? भाई ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव क्यू है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर होगा, इसकी वजह से E2 इधर होगा। जैसे उस वहां फोर्स निकाल लेते तो यहाँ पे 45 डिग्री आया था, ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर का डायगोनल किसी साइड के साथ 45 डिग्री एंगल ही बनाता है। और ये क्यू चार्ज, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। हमारे पास यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट आउट करें तो E1 और E3 आपस में, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर के। ये डिस्टेंस क्योंकि r √2 के बराबर होगी, डायगोनल की लेंथ स्क्वायर का साइड स्क्वायर √2 के बराबर होती है, देयरफॉर E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन r √2 का होल स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 2r स्क्वायर। देयरफॉर फॉर्मूला देखा था, हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर E3 स्क्वायर, वहां फोर्स का स्क्वायर लिया था कूलम्स लॉ में, प्लस E2। ये हम वर्कआउट करें के क्यू बाई आर स्क्वायर √2 प्लस के क्यू बाई 2r स्क्वायर, कॉमन ले ली के क्यू बाई आर स्क्वायर को, ब्रैकेट में √2 प्लस 1/2 आ जाएगा। ये हम तभी कर सकते हैं जब रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में आए। फोर्स वाले पार्ट को कूलम्स लॉ में इसे जरूर एक बार क्रॉस चेक करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5, सपोज ये एक स्क्वायर है, यहां पे क्यू चार्ज, इसके दूसरे हर एक वर्टेक्स पे देयर आर 4 point charges, each of magnitude small q are kept, and this is r, side length is r, and we have to find net electric field at this position, at the center. भाई ये फील्ड किधर जनरेट करेगी? इधर जनरेट करेगी, E1 सपोज कर लिया। ये किधर जनरेट करेगी? E2 इधर। ये किधर जनरेट करेगी? E3। ये किधर जनरेट करेगा? E4। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबका आपस में बराबर आएगा, इक्वल टू के क्यू। आर जो होगा, यहां से आप तक की डिस्टेंस कितनी होगी? r √2 डिवाइड बाई 2।
r by root 2, r by root 2 होल स्क्वायर 2k³ by r स्क्वायर। भाई जब ये इसके बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये भी इसको कैंसिल आउट कर देगा, देयरफॉर रिजल्टेंट E is equal to 0। Now क्वेश्चन नंबर 6, मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q। इसके सेंट्राइड पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। लेंथ r ले लिया भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी r/2। ठीक, ये कितना एंगल होगा 30 डिग्री, ये डिस्टेंस x। तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसकी वजह से, ये सपोज के लिए E1 आ गया, इसकी वजह से इधर E2 आ गया, इसकी वजह से नीचे की डायरेक्शन में ये E3 आ गया। ये कितना एंगल होगा, ये हमें पता है ना, ये परपेंडिकुलर होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60, 120 हो जाएगा नहीं, ये 120 होगा। इसके बीच में भी ये वाला एंगल भी 120 डिग्री ही होगा, ये भी 120 डिग्री ही होगा। नाउ यहाँ पे हम निकालना चाहे x की वैल्यू, तो वी कैन राइट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस ये इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, बेस x r/2 एंड हाइपोटेन्यूस x इक्वल टू cos 30। बेस इसे लिया, हाइपोटेन्यूस इसको लिया, तो ये एंगल ये लेंगे ना, और x इक्वल टू r/√3 आ जाएगा। cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r√3 आ जाएगा। E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू KQ अपॉन x स्क्वायर यानी r स्क्वायर और 3√3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। नाउ 3 को ऐड करना है तो रिजोल्यूशन मेथड यूज करेंगे, इसको आई कैप डायरेक्शन मान लिया, इससे 90 डिग्री एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जे कैप मान लिया। E1 इसके साथ 0 एंगल, E2 आई कैप के साथ एंटी क्लॉकवाइज से 120 डिग्री, E3 एंटी क्लॉकवाइज से 120 प्लस 120 240 एंगल हो जाएगा। हमने कहा लेट वेक्टर E इक्वल टू EX आई कैप प्लस EY J कैप be the resultant vector, be the resultant electric field। EX E1 E2 और E3 तीनों को ऐड करना। E1 ये E1 I के साथ 0 एंगल बना रहा है cos 0 प्लस E2 120 एंगल बना रहा है प्लस E3 240 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर cos 0 1 होता है प्लस ये माइनस, वो cos 120 माइनस 1/2 होता है, E2/2 माइनस cos 240 भी माइनस 1/2 होता है, E3/2। हमें पता है E1 E2 E3 आपस में इक्वल है, ये कैंसिल आउट होकर 0 आंसर दे देगा। इन द सेम वे EY इक्वल टू E1 sin 0 E2 sin 120 प्लस E3 sin 240 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू रखें तो sin 0 की वैल्यू 0 आती है, sin 120 की वैल्यू √3/2 आती है, √3/2 E2, sin 240 की वैल्यू माइनस √3/2 आती है। भाई E2 और E3 बराबर है तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। देयरफॉर रिजल्टेंट इक्वल टू 0
and we know that direction of null vector is not defined. और tan alpha इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, मैथमेटिकली भी इसे हम ऐसे ही शो कर सकते हैं। रिजल्टेंट अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा हो, tan alpha इक्वल टू ई वाई बाई ई एक्स, 0/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इसी बात को हम कहते हैं कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? वन मोर थिंग, क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, सपोज इट इज हेक्सागन, ये नोट करके आप एक बात लिख लें। अगर इसके सभी वर्टेक्स पे क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज रखे हो, रेगुलर हेक्सागन किसे कहेंगे? जिसके सभी साइड्स आपस में इक्वल हो, जिसके सभी साइड्स आपस में इक्वल हो और साथ में इंटरनल एंगल भी आपस में इक्वल हो, उसको हम रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। तो उसके सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले जाए तो इसी मेथड से 0 आ जाएगा। या अगर आप करें कि नहीं भाई साहब हम कोई और शेप ले लेते, ट्रायंगल का तो शेप हमने भी लिया ही था, नंबर ऑफ साइड्स और 3। यहाँ पे तो हमारे पास ऐसा था, ये इधर प्रोड्यूस कर रहा है, ये इधर प्रोड्यूस करेगा, ये इधर प्रोड्यूस करेगा, ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में, मींस अपोजिट डायरेक्शन के पेयर प्रोड्यूस हो जाते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। वो हमें इजीली समझ में आती है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन चीज इजीली कट आउट हो जाती है। लेकिन ये चीज अगर हम देखें तो ट्रायंगल के लिए भी ट्रू है, ये चीज पेंटागन के लिए भी ट्रू है। कोई भी पॉलीगन हो, बस कंडीशन ये है कि उसके हर एक वर्टेक्स पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरी बात, रेगुलर होना चाहिए। उसके सेंटर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो 0 आएगी। उसके सेंटर पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं वो 0 आएगा। और सेम आईजे वाला मेथड जो बताया है, आप इसी को हर जगह यूज कर लीजिए। क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज electric field due to uniformly charged circular ring. Electric field due to uniformly charged ring. Suppose capital Q charge is uniformly distributed over a ring of radius स्मॉल आर। ये रिंग भाई साहब ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, तभी हमें कुछ इस शेप का दिखाई दे रहा है। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। Choosing two diametrically opposite elements of length dl each. Let dq be the charge on them. Then dq will be linear charge density into length of the element. लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? r 2 पाई r सरकमफ्रेंस पे कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी कैपिटल Q बाई
2 pi r into dl. एनी प्रॉब्लम? वैसे मैं लैम्डा लेके ही चलूंगा बिकॉज लैम्डा इज कांस्टेंट देयर. लेट dE be the electric field at the point. dE be the electric field at the point due to each element. इसकी वजह से भी यहाँ पे डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एलिमेंट की वजह से भी यहाँ पे डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ से भाई ये डिस्टेंस इन दोनों पे चार्ज सेम है और डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस आर और ये एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट हियर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट. Therefore, dE can be written as k dq by r square plus x square. ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर करेंगे इतना हो जाएगा. क्लियर? नाउ हम इस एंगल को थीटा मान लें. ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो ये एंगल भी थीटा का. Resolving the electric field due to each element along the axis of the ring and perpendicular to it. ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है, इसकी वजह से यहाँ पे डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में डी साइन थीटा. इसका कंपोनेंट इधर डी कॉस थीटा आएगा और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में डी साइन थीटा आ जाएगा. As the perpendicular components are equal and opposite, they will cancel out each other. Clear? Then net electric field at point P due to these two elements is equal to d cos theta plus d cos theta is equal to 2de cos theta is equal to, कहा था मैं डी क्यू की वैल्यू ये लेके चलूंगा k डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2d की वैल्यू ये आ गई into cos theta is equal to base upon hypotenuse x upon r square plus x square power 1 by 2 2k dq lambda into dl into x upon r square plus x square power 3 by 2. इसकी पावर 1 होगी और इसकी पावर 1 by 2, टोटल 1 plus 1 by 2 3 by 2. Therefore, net electric field at point P, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, इक्वल टू, भाई इसमें क्या है, केवल L वेरिएबल है ना, तो हम यहाँ कहेंगे 2k लैम्डा x बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 3 by 2 इंटीग्रेशन dl. कितना इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसकी लिमिट क्या आएगी भाई, ये दो हमने एक बार एलिमेंट चूज कर लिया ना, इसको अगर हम पेयर वाला इसको हम चलाएं तो दोनों तो ऐसे चलेंगे ना एक साथ, अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है दो एलिमेंट बेस लिया है, एक एलिमेंट हाफ चलेगा तब तक दूसरा एलिमेंट भी हाफ चल चुकेगा, इस वजह से यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to पाई r सेमी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, इक्वल टू 2k लैम्डा x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 by 2 L 0 to पाई r. 2
k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा q अपॉन 2 पाई r इंटू x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पे पाई r माइनस 0 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 इंटू पाई r। ये पाई आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर और P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इसको फिर से k लिख दो, k क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। नाउ स्पेशल केसेज, नंबर 1, at the center of the ring, रिंग के सेंटर पे। भाई यहां पे हम निकलना चाहे, यानी ये पॉइंट यहां ना हो करके यहां होता, इन दैट केस x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इंडिकेट्स, भाई यहां तो 0 नहीं होगा, x की वैल्यू 0 पे आर क्यूब बचेगा, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर को x 0 से मल्टीप्लाई करो सब कुछ 0 हो जाएगा। मीन्स इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। किसके सेंटर पे? यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के सेंटर पे। नंबर 2, व्हेन x इज वेरी स्मॉलर देन r, रेडियस से बहुत कम हो, यानी कि सेंटर तो ना हो लेकिन सेंटर के बहुत पास हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कह सकते हैं कि ये आर स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि एक्स बहुत छोटा है। देयरफॉर E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहीं पे आर स्क्वायर लिखो, आर स्क्वायर की पावर 3/2। हमने किया क्या यहाँ पे, हमने ये किया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 को इस केस में लिखा हमने आर स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल टू आर क्यूब। मैंने आर क्यूब डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। Therefore, what we can say, for this we can conclude that E is proportional to 1/r cube and E is proportional to x also। ये दो कंक्लूजन आते हैं, ये मुझे ध्यान रखना चाहिए। आज का सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को इस प्रकार से चेंज हो रहा है कि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता है, के क्यूब एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये सबको याद रहता है। यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। नंबर 3, स्पेशल केस है भाई, व्हेन x is very greater than r, meaning that x square plus r square को आप लिख सकते हो
एक्स स्क्वायर के। देयरफॉर ई इक्वल टू, हमारे पास क्या था, एक बार हम दोबारा लेते, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। के क्यू एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और E इज प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। मीन्स यहां से हम एक बात का कंक्लूजन और करते हैं कि अगर पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग, देयरफॉर द रिंग बिहेव्स जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। रिंग बिहेव्स जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। Number 4. At x equal to what? When electric field will be maximum. हमें पता है E equal to k q x upon r square plus x square power 3/2. क्लियर? x की वैल्यू निकालिए, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, r कांस्टेंट, x इज द वेरिएबल। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रिस्पेक्ट में, तो हमें डिफरेंशिएट करने पड़ेगा फॉर E मैक्सिमम dE by dx इक्वल टू 0। kq d by dx x upon x square plus r square power 3/2 equal to 0। भाई ये राइट हैंड साइड जाएगा, 0/kq होगा, वो 0 ही रहेगा, और इसको हम जो फ्रैक्शन का डिवीजन रूल लगा करके इसको हम कर सकते हैं। मीन्स सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने देते हैं, d by dx x माइनस न्यूमरेटर को रखते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। किया था ना 11th में ऐसा, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, इक्वल टू 0। भाई देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, माइनस एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर बाहर, पावर इज डिक्रीज बाई 1, इट रिमेन्स 1/2। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन 2x इक्वल टू 0, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ये भाई कॉमन आ गया, x इंटू 3, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 0। भाई ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि रेडियस कभी 0 नहीं हो सकती, x कभी 0 नहीं हो सकता। एक केस में हो भी सकता है, रेडियस तो 0 नहीं होगा ना। इन दैट केस, और r square minus 2x square equal to 0 indicates 2x square equal to r square और x square equal to r square by 2 और x equal to plus minus r by root 2 मीन्स इतनी वैल्यू पे फील्ड मैक्सिमम होगी। जब x की वैल्यू आ गई तो एक बार E मैक्सिमम भी निकाल लेना। E इक्वल टू एज E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। देयरफॉर E इक्वल टू E मैक्स इक्वल टू के क्यू आर बाई रूट 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2
KQR by root 2 3 by 2 R square is equal to KQR root 2 3 root 3 2 root 2 into RP. Therefore भाई इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, E maximum is equal to 2KQ, इससे ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा 3 root 3 R square। समझ लें इस चीज। इतनी चीजें हिंदी में हमें कंटेस्ट रहनी चाहिए या ध्यान रहनी चाहिए, मेमोराइज रहनी चाहिए। इसके बाद कोई भी हम ये बात कह सकते हैं। क्लियर? ग्राफ की अगर हम बात करें, ग्राफ की हम बात करें यहाँ पे, जहां पर हम E वर्सेस R, भाई साहब ये पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, अपोजिट एक्स में लेने पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है, और जब इसकी वैल्यू R बाई रूट 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी। इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट एक्स में होगी, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू एक्स था, तो इसको ऐसे जाना चाहिए, दिस इज द ग्राफ। रेप्लिका है, इधर मिरर इमेज बनती है। एक बात ध्यान रखिए, कहीं और कुछ भी और ग्राफ इसका बना हो, दैट इज नॉट करेक्ट। बस एक चीज ध्यान जो रखनी है, यहाँ पे हमने डायरेक्शन भी ध्यान रखा हुआ है। अगर मैं डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखता, केवल मैग्नीट्यूड की बात करता, तो इधर भी ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे ही आ जाता। इस केस में मिरर इमेज यहां से ऐसे बना देते। मिरर को हम मिरर को ऐसे रखते, और इस जो इधर डायग्राम आता इस टाइप में, वो भाई साहब जो डायग्राम होता है उनके लिए कर ही लेते हैं। ये वाला जो डॉटेड पोर्शन है, ये तब हम बात करेंगे जब केवल मैग्नीट्यूड को ड्रॉ किया जाए, और ये दोनों पोर्शन डार्क लाइन जो हैं, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही हम ड्रॉ करते हैं, तब केस आता है। क्लियर? रब करते हैं, ओके। यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, और आप देख रहा हूँ लेक्चर 1 आवर 3 मिनट। ना वन मोर थिंग, दोबारा कहूँगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। कहीं कोई डिफिकल्टी पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट जरूर करिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम। और हैव ए नाइस डे टुडे, गुड डे।